Good morning, dear students. Welcome to the virtual class. Class 8, Chapter 12, The Indian National Movement, History. Students, I have already explained you till the British policy of discrimination given on page number 102. I am continuing with the formation of Indian National Congress. The culmination of the growing consciousness of nationalism among the Indians laid the foundation of INC in the year 1885. जैसे कि सब में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया नेशनलिज्म का फीलिंग आ रहा था सो दे थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ community and to make a group of Indians who can fight for us and listen to us. I mean, the Indians only, about the problems of the Indians only. So they formed an Indian national movement who started by the retired Indian Civil Services officers A.O. Hume. And the first session of the INC was held on 28th December 1885 and Vamesh Chandra Banerjee was its first president. Alright, so the motive to create INC was to create a unified platform for all different and discordant elements of India. Means a common platform जहाँ पर Indians आके अपने आप को बहुत अच्छे से अपनी problems को express कर सकें. Gradual regeneration of the nascent and Indian nation. See, India was facing a lot of negativity at that time. It was in a mental and moral and social problematic positions of their mind was having at that time. So they thought that there must be some people and must be some platform from whom we can talk about our problems. Modification in the condition of the Indian through a strong union between England and India. I've already told in Zoom also, being England as a very strong country at that time. So India tried, the politicians, the nationalists जो थे वो they were trying very hard to make good and cordial relationship with England so that India can overcome the problems and can free themselves from the clutches of the Britishers. Further moving, the Indian national movement was gone under three stages: the moderates, the radical, and Gandhian. I will brief you first. The picture on the screen you're seeing is between the moderates and the radicals. Radical means extremist, जो कि लड़ना चाहते थे. Moderates were in a favor in following the Constitution of India and do everything in the peaceful manner. And see, they adopted the most humble and the modest methods to get their work done. So important moderate leaders include Firoz Shah Mehta, Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee and Gopal Krishna Gokhale. The moderate leader believed that the British were unaware of the ground realities in India. वो उनको ऐसा फील होता था कि Britishers are not aware about our grand reality, rich culture, festivals and our leaders. इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है. तो उन्हें लगा कि वी शुड ऑप्ट गुड रीजंस, हमें बहुत अच्छे से आराम से पीसफुली जो भी करना चाहिए उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा बिलीव करते थे कि वॉर और बैटल से किसी को कुछ भी नहीं मिलता. Alright, so they used petitions and resolution to make the British government aware of the problems and urge them to make changes in their policy. So उन्होंने क्या क्या डिमांड्स रखी इंडियंस ने, मॉडरेट्स ने ब्रिटिशर्स के सामने. उन्होंने बोला कि एक तो सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन हो जाना चाहिए, एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो हैं वो इकट्ठा होना चाहिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करें और टैक्स बर्डन को भी कम करें. So this phase of national movement was successful in making the Indian aware of their problems. उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा पता लगने लगा इंडियंस को, क्योंकि तब एजुकेशन पे इन्वेस्ट होगा तो ऑब्वियसली उन्हें सही और गलत में फ़र्क पता लगेगा. एंड द मॉडरेट्स वर्क टुवर्ड्स द creating a common platform to organize public opinion in India. The next was the radical phase. That is the extremist also, they known as this. इसको किसने सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इनके लीडर्स, रेडिकल लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, जिनको टुगेदरली लाल बाल पाल बोला जाता था. उन्हें ये लगता था कि डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स, कि मॉडरेट्स ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल मैनर अपना रहे हैं, स्टिल द ब्रिटिशर्स कॉन्टिन्यूइंग विद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि ब्रिटिशर्स अभी भी हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. सो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट एडॉप्टेड बाय द मॉडरेट्स. That is why they are known as the radicals. These leaders believed that India could not make any progress under the British rule. So they wanted absolute autonomy for India and demanded स्वराज. उन्हें लगा कि हमें absolute, हमें खुद अपना गवर्नमेंट को चलाना है और स्वराज चाहिए, हम जो करें इंडिया में करें. They started advocating aggressive methods of protest
अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उनके दो मेन मोटिव्स थे, एक तो स्वदेशी का और बॉयकॉट दी ब्रिटिश गुड्स। उन्हें कुछ भी फॉरेन का यूज़ नहीं करा, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे प्रोटेस्ट करा था। सो द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड द रेडिकल्स लेड टू द स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत सेशन इन 1907। इसी लड़ाई की वजह से, बिकॉज रेडिकल्स और मॉडरेट्स के माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं मिलते थे आपस में, तो आईएनसी का एक सेशन सूरत में हुआ था 1907 में, वहाँ पर इनमें आपस में झगड़ा हो गया था। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। See, the partition of Bengal, it is done by Lord Curzon. Why? Because उन्हें ऐसा लगता था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, इट वॉज अ बिग प्लेस, सो दे डिवाइडेड बंगाल इंटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल. However, the real reason was to curb the growing national movement in Bengal by dividing Bengal on religious line. मेन मोटिव लॉर्ड कर्जन का ये था कि हम कॉम्युनलिज्म को इंडिया में कैसे लेकर आए। मतलब तब हमने एक ही प्रांत को दो दो लोगों में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। एज जो ईस्ट था वहाँ पर ईस्ट बंगाल में ज़्यादा मुस्लिम्स चले गए थे और वेस्ट में हिंदूज थे, तो ऑलरेडी वो अलग हो गए, उन्हें कम्युनिटी बेसिस पे उन्होंने अलग कर दिया। तो ये तो लेम एक्सक्यूज़ था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के लिए उनको अलग करा जा रहा है। The main motive was for the giving birth to the communalism. So the partition of Bengal resulted in massive protest all around and led to the Swadeshi movement. The next topic is the Swadeshi movement. एज द नेम इज सजेस्टिंग, जो लोग थे स्वदेशी मीन्स अपने देश की चीज़ें यूज़ करना चाह रहे थे, तो उसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो द पीपल ऑफ बंगाल इन पर्टिकुलर इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री, जितने इंडियंस पूरी कंट्री में थे, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑन 7 अगस्त 1905 दे स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट टू कंप्लीट बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स. So there was a widespread participation from all classes of the movement. Women and students actively participated in the movement. एंड इसी मूवमेंट में, इसी तब रेवोल्यूशनर हो रहा था इसके लिए, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो जेल भी गए थे 6 years के लिए. ऑल राइट, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द मुस्लिम लीग. द पार्टीशन ऑफ बंगाल सोड द सीड्स ऑफ कॉम्युनलिज्म. मैंने आपको बताया जैसे ही बंगाल में पार्टीशन हुआ था ऑलरेडी कॉम्युनलिज्म के बीज बो दिए गए थे. तो नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका और प्रिंस आगा खान ने मिलकर एक मुस्लिम लीग बनाई. ऑल राइट, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था? टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वो ब्रिटिशर्स के फेवर में हो गए थे कि हम ब्रिटिशर्स की सारी बात मानेंगे और मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ाई करेंगे. ऑल राइट, नेक्स्ट इज द सूरत स्प्लिट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तब मैंने रेडिकल्स पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया कि रेडिकल्स और मॉडरेट्स के माइंडसेट जो थे वो डिफरेंस थे. रेडिकल्स वांट टू फाइट एंड मॉडरेट्स वांट एवरीथिंग विद अ पीसफुल मैनर. तो इन्हीं का एक सेशन आईएनसी का, इंटरनेशनल कांग्रेस का, सूरत में हुआ था 1907 में, जहाँ पर इनमें झगड़ा हो गया था. दैट इज़ फेमस फॉर द सूरत स्प्लिट. Moderates reacted differently to the partition of Bengal. They condemned the partition and wanted to initiate a formal protest. So the radicals, on the other hand, advocated Swadeshi and boycott. The conflict between the moderates and the radicals led to the split in the Surat session in 1907, which came to be known as the Surat split. All right. Next is the revolutionaries. रेवोल्यूशनरीज उनको बोला गया है बेटा जिनके मन में इंटेंस लव फॉर कंट्री है, बहुत प्यार अपने देश के लिए, एंड दे कैन डू एनीथिंग फॉर देयर कंट्री. सो सम ऑफ द फेमस नेम इन दिस आर राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद. What are the features of the revolutionary? There are intense love for their country, use of violent means कि लड़ाई झगड़ा मार काट कुछ भी करके हमें इंडिया को फ्री कराना है, and use of newspaper, books and pamphlets to spread radical ideas. All right. The next topic is Indian Council Act 1909, which is also known as Morley Minto Reform. It increased the number of members in the legislative councils. It also introduced separate electorates for Muslim. Indian Council Act 1909 में legislative councils में Indians की और Muslims की participations बढ़ चुकी थी. ऑलराइट, और एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब उन्होंने मुस्लिम्स को ये राइट दिया कि वो अपना एक अलग दावेदार जो है वो चूज़ कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सकते हैं. अंडर दिस प्रोविजंस द मुस्लिम्स वर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू दीज काउंसिल. प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर प्रोटेस्टेड बाय कांग्रेस लीडर्स एट द सॉइड अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिवाइड इंडिया ऑन कॉम्युनल लाइन्स.
पर ये जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो बहुत अच्छे से ब्रिटिशर्स के गेम को समझ रही थी कि वो सिर्फ कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और वो हिंदू मुस्लिम्स में लड़ाई कराने वाले हैं। इस वजह से वो ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो ये कहना चाह रहे थे वी कैन वर्क टुगेदर एज इंडियंस, नॉट एज मुस्लिम्स एंड हिंदू। The next topic is the Lucknow Pact 1916. In 1916, both Congress and Muslim League held sessions at Lucknow. लखनऊ में एक 1916 में सेशन हुआ, मीटिंग हुआ. This session was important from many viewpoints. बहुत important था. Both the parties passed resolution for working towards the idea of self-governance. दोनों ने, हिंदू मुस्लिम्स दोनों ने मिलकर ये डिमांड किया कि हमें सेल्फ गवर्नेंस दी जाए. कांग्रेस एक्सेप्टेड द क्लॉज फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स. कांग्रेस ने इस चीज़ पर सहमति दिखाई कि ठीक है, अगर मुस्लिम्स अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अलग चुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नो इश्यूज. दे ऑल्सो एग्रीड ऑन हैविंग सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन फॉर द कंट्री. दिस अरेंजमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज इज नोन एज द लखनऊ पैक्ट. जो कांग्रेस और मुस्लिम्स में ये सेटलमेंट हुआ, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है. इसमें रीयूनिफिकेशन भी हुआ मॉडरेट्स और रेडिकल्स का इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्योंकि एक नई पार्टी जो थी वो भर के आ रही थी. मतलब दे वांटेड टू वर्क टुगेदर फॉर कंट्री, फॉर देयर इंडिपेंडेंस. सो द पैक्ट इज सीम एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स हिंदू मुस्लिम यूनिटी. दोनों ही मुस्लिम्स उनकी चीज़ों को एग्री कर रहे थे कांग्रेस को, और कांग्रेस उनकी चीज़ों को एग्री कर रहे थे. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हिंदू मुस्लिम यूनिटी. The last topic is the Home Rule League movement. In 1916, Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant started Home Rule movement. Tilak formed his league in Pune and Maharashtra. तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी एक लीग बनाई पुणे और महाराष्ट्र में, और एनी बेसेंट ने मद्रास में. होम रूल मूवमेंट वर्क टुवर्ड्स द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बाय क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस. होम रूल लीग ये थी कि इन लोगों ने अपनी अपनी जगहों पर लीग बनाकर लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई कि हमें सेल्फ गवर्नेंस बॉडी चाहिए, मतलब हम खुद रूल करें अपनी कंट्री के लिए. दोनों ने इसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और रैलीज़, बहुत सारी चीज़ें एनी बेसेंट ने भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी, टू हेल्प दी self-government by creating the public awareness. All right, so by this we have completed this chapter. If there is any doubt, we'll discuss in the Zoom class. Till then, happy learning.